Acute mania means when the symptoms of mania rise suddenly, like aggression, social withdrawal, overactivity, over happiness, uh, and mania means mania refers to a syndrome in which central features are self-importance, ideas, overactivity, and then next indication is schizoaffective disorder. Schizoaffective disorder. Next, impulsivity. Impulsivity means act without thinking. Act without thinking. Impulsivity. Next, in the other indication are bulimia nervosa. Bulimia nervosa means person eating too much, being eating and then purging, and to get the rid and feel guilty also. In the condition of bulimia nervosa, person being eating and after then he is purging and gets the rid and feeling guilty. These all are the symptoms of bulimia nervosa. And next one is tri trichotillomania. Trichotillomania tricho means hair and till means खींचना and mania means mood disorders. ट्राइकोटिलोमेनिया में क्या होता है, पर्सन अपने बालों को या दूसरों के बालों को बहुत ज्यादा खींचता है. तो ये थे हमारे इंडिकेशन ऑफ लिथियम. फर्स्टली acute mania means mania is refers to a syndrome in which central features are overactivity, self importance idea. Acute mania, this is the type of mania: acute mania, delirious mania and hypomania. Acute mania means when the symptoms of mania arise suddenly. Bipolar affective disorder in this unipolar and bipolar. Bipolar means both mania and depression. In unipolar means severe depression. Next, cyclothymia means mood swings. Schizoaffective disorder means both symptoms of schizophrenia and affect means mood, जिसमें हमारे मूड डिसऑर्डर और schizophrenia दोनों के symptoms present होते हैं. We can say schizoaffective disorder. Next, impulsivity means act without thinking. Bulimia nervosa is a eating disorder. Next, trichotillomania means जो लोग बाल खींचते हैं, till the hair. Trichotillomania. So these are the indication of mood stabilizers. Next, we will discuss about the pharmacokinetics. Pharmacokinetics of mood stabilizers. Lithium is readily absorbed with peak plasma level occurring 2 to 4 hours after a single dose of lithium carbonate. लिथियम कार्बोनेट की एक सिंगल डोज के बाद 2 से 4 घंटे में लिथियम हमारी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, आसानी से अवशोषित हो जाती है. लिथियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द लिवर एंड किडनी एंड मोर स्लोली इनटू द मसल्स. लिथियम लीवर और किडनी में रैपिडली मींस जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मोर स्लोली, लेकिन मसल्स में कैसी होती है, डिले. लिथियम लीवर और किडनी में रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एंड मोर स्लोली इनटू द मसल्स में क्या होती है, स्लोली डिस्ट्रीब्यूट होती है. एंड देन लिथियम इज रीएब्जॉर्ब इनटू द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स. लिथियम रीएब्जॉर्ब हो जाती है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में. प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स, लोब ऑफ हेनले एंड डिस्टल, these are the parts of nephron. तो proximal tubules में लिथियम क्या हो जाती है,
डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती है। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में लिथियम रीएब्जॉर्ब हो जाती है एंड इन्फ्लुएंस बाई सोडियम बैलेंस, और सोडियम बैलेंस के द्वारा क्या होती है, ये इन्फ्लुएंस होती है। सो देन दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ lithium. I'm repeating once again, lithium is distributed rapidly into the liver and kidney and more slowly into the muscles. Lithium is rapidly distributed into the liver and kidney and more slowly into the muscles. Lithium is readily absorbed with peak plasma level occurring 2 to 4 hours after a single dose of लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट के डोज के बाद लिथियम क्या होती है, आसानी से 2 से 4 घंटे में हमारे बॉडी में ऑर्गन्स में डिसॉल्व हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, इजीली जल्दी होती है लीवर में और किडनी में, और स्लोली होती है मसल्स में। लिथियम फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाती है, कहाँ पर, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में एंड इन्फ्लुएंस बाय सोडियम बैलेंस। Next, mode of action. The specific biochemical mode of action of lithium in stabilizing mood is unknown. लिथियम कैसे एक्शन करती है मूड को स्टेबलाइज करने में, वो अननोन है। अपॉन इंजेक्शन, जैसे हम लिथियम लेते हैं उसके आधार पर अगर हम बताएं तो अपॉन इंजेक्शन lithium is distributed into the CNS and interact with the neurotransmitter. लिथियम CNS में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरेक्ट होती है एंड डिक्रीज नोरेपिनेफ्रिन रिलीज एंड increase serotonin and increase serotonin synthesis. लिथियम का जो मोड ऑफ एक्शन है कि कैसे वो मोड स्टेबलाइजिंग करती है वो अननोन है, लेकिन इंजेक्शन के आधार पर अगर हम बात करें तो लिथियम सीएनएस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरेक्ट होती है, डिक्रीज कर देती है नोरेपिनेफ्रिन रिलीज को एंड इंक्रीज सेरोटोनिन सिंथेसिस। So this is the mode of action of lithium. Next we will discuss about the dose of lithium. So lithium is available in the market in with the following preparation. First one, lithium carbonate 300 mg. The trade name is LiCarb. Second one, lithium citrate. First one, lithium carbonate 300 mg. Trade name is LiCarb, and second one, lithium citrate 300 mg for 5 L. 300 mg for 5 L. Sorry, ml liquid. ml liquid. So these are the dose of lithium. 300 mg class is lithium citrate. Lithium carbonate 300 mg. The trade name is LiCarb, and second one, lithium citrate 300 mg per 5 ml liquid. Second, the exact dose 900 to 2100 mg is given to the manic patient. 900 mg to 2100 mg dose is given to the manic patient in divided dose 2 to 3 times.
900 से 2100 mg डोज हम पेशेंट को दे सकते हैं 2 से 3 बार में डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड लिथियम लेवल। ब्लड लिथियम लेवल, ब्लड लिथियम लेवल। So therapeutic level is therapeutic level, prophylactic level, and third lithium toxicity. Lithium toxicity. Therapeutic level is 0.8 to 1.2 m EQ per L, milli equivalent per liter, milli equivalent per liter. Second, prophylactic level is 0.6 to 1.2 m equivalent per liter. And toxicity, lithium toxicity level is more than 2.0 m equivalent per liter. Therapeutic level means 0.8 to 1.2 m equivalent per liter अगर ब्लड लिथियम लेवल है तब पेशेंट को हम ये मीन्स प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड, प्रोफाइलैक्टिक लेवल, लिथियम का लेवल ब्लड में 0.8 टू 1.2 MEQ पर L होना चाहिए जी। क्यों? अगर इससे ज़्यादा पेशेंट के ब्लड में लिथियम का लेवल होगा तो पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होंगे, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर लिथियम के साइड इफेक्ट आ जाएंगे। तो ब्लड का लेवल MEQ पर L होना चाहिए 0.8 टू 1.2। सेकेंड, लिथियम टॉक्सिसिटी, जब लिथियम का लेवल ब्लड के अंदर 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा तो पेशेंट के अंदर क्या होंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे लिथियम टॉक्सिसिटी। थेरापेटिक लेवल मींस अगर बीपीएडी है या सीजो अफेक्टिव है या इंपल्सिविटी पेशेंट शो कर रहा है, बुलीमिया नर्वोसा में अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं लिथियम तो उस समय पर ब्लड में लिथियम का लेवल 0.8 से 1.2 MEQ पर L होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा मींस मोर देन 2.0 से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे लिथियम टॉक्सिसिटी। और उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन के अंदर लिथियम के साइड इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक अटैक्सिया, ट्रिमर, हैंड ट्रिमर्स, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो लिथियम के कारण पेशेंट में हमें देखने को मिलेंगे। तो दिस इज ऑल आर अबाउट द ब्लड लिथियम लेवल। थेरापेटिक लेवल इज 0.1 टू 1.2 मींस ब्लड में लिथियम का लेवल 0.8 से 1.2 तक होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा, इस लेवल को हम थेरापेटिक लेवल बोलते हैं। इतना ही लेवल हम पेशेंट के ब्लड में लिथियम का रखते हैं, क्यों, जिससे कोई भी लिथियम की वजह से पर्सन में साइड इफेक्ट ना हो, या फिर एडवर्स इफेक्ट से प्रिवेंशन से बचने के लिए या कोई साइड इफेक्ट हो उससे बचने के लिए हम क्या रखते हैं, लिथियम का लेवल इतना रखते हैं। Next we will discuss about the side effects. Side effects of lithium. First one, muscles weakness. Muscles weakness, coma, confusion, in urinary systems, polydipsia, polyuria, next tubular enlargement, next nephrotic syndrome, nephrotic syndromes,
इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टी वेव डिप्रेस, टी वेव डिप्रेस। तो ये क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं मूड स्टेबलाइजर्स के। मसल्स वीकनेस हो सकती है मूड स्टेबलाइजर्स के, मींस साइड इफेक्ट्स, मसल्स वीकनेस हो सकती है, कोमा में जा सकता है पेशेंट, पेशेंट को कंफ्यूजन हो सकती है, पोलीडिक्सिया पेशेंट को हो सकता है, पोलीयूरिया पेशेंट को हो सकता है, ट्यूबुलर एनलार्जमेंट हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ड्राई माउथ हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग, देन डिहाइड्रेशन मीन्स फ्लूइड लॉस मीन्स एनोरेक्सिया। So these are the side effects of mood stabilizers. Next, we will discuss about the signs and symptoms of lithium toxicity. Lithium toxicity. Signs and symptoms. First one, ataxia. Ataxia means incoordinations of muscle tone. Second, coarse tremor in hand. Coarse tremor in hand. Coarse tremor in hand. Next, nausea and vomiting. Nausea and vomiting. Next, impaired memory. Impaired memory. Next, coma. Next, lethargy. Lethargy means loss of energy. तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। जब हमारे ब्लड में लिथियम का लेवल 2.0 MEq 2.0 MEq पर L से ज़्यादा होगा तो उस समय पर लिथियम टॉक्सिसिटी की कंडीशन होगी और पर्सन या पेशेंट के अंदर हमें ये सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। अटैक्सिया मीन्स इनकोऑर्डिनेशन, कोर्स ट्रीमर्स हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, पर्सन पेशेंट की मेमोरी इम्पेयर्ड हो सकती है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट लिथार्जी हो सकता है मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है।